پاکستان کی اشتعال انگیز کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ پاکستان مسلسل سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ گزشتہ رات بھی پاکستان نے پونچھ میں مینڈھر تحصیل کے بالاکوٹ سیکٹر میں گولہ باری کی۔ فوج نے بھی پاکستان کی اشتعال انگیزی کا کرارا جواب دیا۔ رات 12 بجے شروع ہوئی گولہ باری صبح 4 بجے تک جاری رہی۔ پاکستان نے فوجی چوکیوں کے علاوہ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بالاکوٹ میں 3 مکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس دوران چند مویشی بھی گولہ باری کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے ہیں۔ مرکز نے جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز بنانے، اثاثہ جات اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے لیے سہ رکنی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جموں کشمیر تنظیم جدید قانون کے تحت کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ سابق سیکرٹری دفاع سنجے مترا کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جبکہ ریٹائرڈ IAS آفیسر ارون گوئل اور ریٹائرڈ ICAS آفیسر گری راج پرساد گپتا اس کے رکن ہوں گے۔ یہ کمیٹی فوری اثر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گی اور اس کی مدت 6 ماہ رہے گی۔ ضرورت پڑنے پر کمیٹی کی مدت میں توسیع کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ ایڈوائزری کمیٹی لداخ جموں کشمیر کے بیچ اثاثوں، ذمہ داریوں کی تقسیم کے علاوہ دیگر وسائل کی تقسیم کی سفارش کرے گی۔ واضح رہے کہ لداخ اور جموں کشمیر یونین ٹیریٹریز 31 اکتوبر سے وجود میں آئیں گی۔ مودی حکومت نے اپنی دوسری میعاد کے پہلے 100 دنوں میں کافی جرأت مندانہ اور عوام دوست فیصلے کیے ہیں، جس سے ملک خوشحالی اور ترقی کے راستے پر آگے بڑھے گا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے PMO ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ جتیندر سنگھ نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے فیصلے سے تینوں خطوں جموں، کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اب اصل دھارے میں شامل ہوگا اور اسے ترقی کے وہ تمام مواقع میسر آئیں گے جو ملک کی دیگر علاقوں کے لوگوں کو حاصل ہیں۔ You will have the feel of normalcy in very next few weeks and months. And as I said, this is the last phase of militancy, which was the major impediment in restoration of normalcy. It led to isolation. It led to domestic deprivation because particularly the youth could not benefit themselves from the enormous avenues which have opened up in the rest of the country, and they were kept away from it because certain vested interests wanted it like that. And it also led to international repercussions because the youth who were living in isolation became very vulnerable and became a ready fodder for the hostile foreign powers including Pakistan. So it was easy to maneuver and manipulate their mentality and mindset when they were in isolation. When they open up and have an opportunity to intermingle with their peers, their counterparts in the rest of the country, because this is a global world, very well connected youth, I think this will be also taken care of. اس موقع پر جتیندر سنگھ نے وادی کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال بہتر نہ ہونے کی باتوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات معمول پر لوٹنے کے بعد انٹرنیٹ اور موبائل خدمات پر عائد پابندیاں مکمل طور پر ہٹائی جائیں گی۔ Please don't say there is no curfew. کرفیو میں تو کرفیو پاس کے ساتھ باہر جانا پڑتا ہے۔ سری نگر میں جو کوئی آدمی باہر نکلا اسے کرفیو پاس نہیں مانگا جاتا۔ ہاں، اس سے یہ اپیکشا کی جاتی ہے کہ کوئی واتاورن خراب کرنے کی کوشش نہ کرے کہ تو اس پہ قانونی کارروائی ہوگی۔ 144 لگا ہوا ہے، کچھ پرتیبندھ ہے۔ ایک دوسرا، انٹرنیٹ کو لے کر کے ہماری چرچا ہو رہی ہے، گرہ منترالیہ میں بھی ہوئی، پردیش پرشاسن کے ساتھ ہوئی۔ ہم تو چاہیں گے کہ جتنی جلدی کھل سکے۔ بیچ میں ایک پریاس ہوا بھی، ایک مختصر سا، لیکن اس میں اینڈ آئی ایم شیور آل آف یو آر concerned with the security and the integrity of the nation. اس میں کچھ فیک ویڈیوز کا وشے آ گیا، خاص طور سے BBC اور اتیادی، اور اس لیے ان کو اپنے اس فیصلے پر پناہ وچار کرنا پڑا۔ But I can assure you the government itself is equally keen کہ یہ پرتیبندھ اٹھ جائے، اور شیگھر ہی اس طرف بڑھنے کا کرم بھی آرمبھ ہو گیا ہے۔ سرپنچوں کی بیٹھک میں گرہ منتری جی نے یہ اسپشٹ کیا تھا کہ کچھ ہی سپتاہ میں یہ پرتیبندھ دھیرے دھیرے ہٹا دیے جائیں گے۔
पुलिस ने धमकी आमेज पोस्टर चस्पा करने के सिलसिले में OGWs पर मुश्तमिल 8 अफराद का ग्रुप गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये ग्रुप सोपोर में 3 सरगर्म मिलिटेंटों के इशारों पर लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे। DGP का कहना है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सोपोर पुलिस अलॉन्ग विद अदर सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें CRPF और आर्मी भी शामिल है, एक टेरर मॉड्यूल जो लश्कर तैयबा का था वो पकड़ा है सोपोर में, जिसमें अभी तक 8 लोग अरेस्ट किए गए, जिनमें मैं नाम बताना चाहूँगा आपको। तौसीफ अहमद नजार, फैज़ान लतीफ़, मोहम्मद उमर अकबर, एजाज अहमद, शौकत अहमद, दानिश हबीब, ये 8 लोग हम लोगों ने पकड़े हैं। इनमें से मेजॉरिटी जो लड़के हैं उनका ताल्लुक बराट कलां एरिया से है, एक लड़के का ताल्लुक डांगरपुरा सोपोर से है, एक का भुमई एरिया से है और एक का हाईगाम एरिया से है। ये सभी एरियाज, सभी विलेजेस जो हैं सोपोर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। ये लोग लश्कर तैयबा के 3 एक्टिव टेररिस्ट, जिनमें सज्जाद उर्फ हैदर, आसिफ मकबूल भट्ट, ये अठूरा बारामूला का रहने वाला है, और मुदस्सिर पंडित जो कि डांगरपुरा का रहने वाला है, इन तीनों के साथ मिल के एक कॉन्स्पिरेसी हैच किया है सोपोर एरिया में पोस्टर्स बनाने का, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको डिफरेंट विलेजेस में पेस्ट करना, ताकि सोपोर एरिया में किसी भी तरीके से नॉर्मलसी जल्दी रिस्टोर ना हो। और इनका प्राइम मकसद था टेररिस्ट के साथ मिल के लोगों को टेरराइज करा जाए, लोगों को डराया जाए, जो पोस्टर से नहीं डरेंगे उनको गोली से डराया जाए। On the contrary, the Pak-sponsored militant outfits, especially Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and also Hizbul Mujahideen have been running around here and there, pressurizing people not to carry out their daily chores, not to carry out their daily business. They went around threatening people by way of issuing various kind of posters. Yesterday, a group working with Jaish-e-Mohammed has been apprehended in Sopoor area, wherein those people were doing that activity on behalf of their militant outfit. They were printing posters threatening people, threatening fruit growers, and they are associates of militants. They are actually not Pak-trained militants, but they are their associates, OGWs, working with the militants for pretty long time. Similarly, in South Kashmir, militants belonging to Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed went around and threatened people, even working in the orchards, not to pluck their fruit and all from the apple trees. Militants are being chased everywhere. Wherever they went, we are after them. I assure people that all these people who are going out to threaten them not to carry out their daily activities would be taken to law and they'll be certainly dealt. DGP दिलबाग सिंह का कहना है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई जिम्मेदारी से अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के बावजूद लोगों की नक्ल हरकत की इजाजत थी और कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। सिंह ने कहा कि वादी के हवाले से कई मीडिया हलकों में गलत बयानी से काम लिया गया। Been a very integral part of India, and it has always been like that. It will continue to be like that. There's no doubt about this to anybody's mind. We treat that our people are absolutely our responsibility. We have to take care of their security. We have to take care of their feelings and sentiments, and that is what is being done. Over a month now, you have seen a post-abrogation of 370 article in the state of Jammu and Kashmir. Our deployments of all kinds of security paraphernalia have been behaving very, very responsibly. There's not a single incident where any complaint with regard to excesses vis-a-vis the civilian public have occurred. We allowed people to move around. They were free to go to the hospitals, free to go for their prayers and all, free to go for any social commitment that they had. So that kind of facilitation was ensured.
So I'm happy to say that not a single major law and order incident over the last over 1 month has reported from anywhere. I can say this with 100% authenticity. Not a single innocent person anywhere has been picked up. Rather, we've been very, very considerate wherever a young student or a youth has been involved in minor kind of land order situations. We picked him up, we counseled him, and we handed him over back to the community. यौम आशुरा के मौके पर आज श्रीनगर शहर के कई इलाकों में सख्त बंदिशें आयद की गई थीं। हसास मकामात पर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था ताकि शिया तबके की जानिब से मातमी जुलूस निकालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। बेशतर एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से गाड़ियों की नक्ल हरकत भी मुतासिर रही। यौम आशुरा के मौके पर आज वादी कश्मीर में सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद की गई है। अगर यहाँ हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें तो जो शिया अक्सरियत वाले इलाके हैं उनके साथ साथ यहाँ बाकी जो इलाके हैं जैसे लाल चौक का एरिया है तो यहाँ पे भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको खारदार तार बिछा के सील कर दिया है और सिक्योरिटी फोर्स उसको काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है। यहाँ पर अगर हम मुहर्रम के जुलूसों के हवाले से बात करें तो 8, 9 और 10 को निकलने वाले जुलूसों पर पहले ही सरकार ने पाबंदी आयद की थी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आज का दिन किस तरह से अमन अमान से निकल जाए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं कश्मीर में मौजूदा हालात के बीच एक तरफ इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में बड़े जुलूसों पर पाबंदी आयद की है, वहीं इस साल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने जुलूस न निकालने का फैसला किया था। श्रीनगर में रिवायती तौर पर 1990 तक आबी गुजर से जुलूस जुलजना निकाला जाता था, मगर अब यहां इस दिन पाबंदी ही आयद रहती है। के हवल एरिया में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रास्ता आगे का बंद कर दिया गया है और यहाँ पे पुलिस और सीआरपीएफ तैनात है और आगे किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खासकर अगर हम बात करें मीडिया को यहाँ पे रोका जा रहा है। इस साल जुलूस न निकालने का फैसला किया था। एहतिजाज उन्होंने ये किया था कि उन्होंने उनका ये कहना था कि उनकी मांग रही थी कि उनको रिवायती तौर पर जैसे 90 से पहले जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाती थी वैसे उनको इजाज़त दी जाए, लेकिन इस साल नहीं इजाज़त दी गई। उसके लिए इस साल शिया एसोसिएशन ने जुलूस न निकालने का फैसला किया था। और वही इंतज़ामिया की भी अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया ने भी हालात को देखते हुए बड़े इज्तिमा को रोकने के लिए कदगने लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और कोई भी बड़ा इज्तिमा होने की इजाज़त नहीं दी है। किसी को भी ज़रीबल जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि जो इमाम बारगाहों में लोग जमा हुए वहाँ पे उन्होंने मातम किया और घरों में मातम किया, लेकिन किसी भी जुलूस को निकलने की इजाज़त नहीं दी। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जिला अनंतनाग में मजमूई तौर पर हालात काबू में रहे। कस्बा अनंतनाग समेत तमाम दीगर हसास मकामात पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती जारी रही। जम्मू, श्रीनगर, कौमी शाहरा और दीगर अहम शाहराओं पर भी फोर्सेस के नाके कायम हैं। कई मकामात पर राहगीरों से पूछताछ भी की जाती है। लगातार दुकानें और कारोबारी इदारों के बंद रहने से आम जिंदगी मफलूज है। सड़कों पर निजी ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी है। मोबाइल और इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से लोगों, खासकर तलबा को मुश्किलात दरपेश हैं। उधर दमहाल में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला की बिना पर फोर्सेस ने ऑपरेशन लॉन्च किया, जो काफी देर तक जारी रहा। इस दौरान फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई भी अंजाम दी। जिला कुलगाम के सभी तहसील सदर मकामात में बंद रहा। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब था। निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही आज भी देखने को मिली। दूर दराज इलाकों में मवासलाती निज़ाम ठप होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मवासलाती निज़ाम बिलखुसूस मोबाइल और इंटरनेट बहाल करने की अपील की है। ज़िला से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। वहीं कस्बा पुलवामा में आज भी कारोबारी इदारे बंद रहे। इस दौरान अगरचे कस्बा पुलवामा में निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा रही है। पूरे ज़िला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कस्बा पुलवामा के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती जारी है। मोबाइल और इंटरनेट मुअत्तल रहने से तलबा और आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। वहीं जिला शोपियां की अगर बात करें तो यहां भी मुसलसल कारोबारी इदारे बंद हैं। कस्बा शोपियां समेत पूरे जिला में दुकानें बंद हैं। इस दौरान निजी गाड़ियों की नकलो हरकत देखी जा रही है। जिला शोपियां में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। जिला शोपियां में मोबाइल और इंटरनेट खिदमात बंद रहने से लोग परेशान हैं। दिल्ली और मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी और दीगर कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए
कई कश्मीरी तलबा ने एंट्रेंस टेस्ट दिए थे। इनमें कई यूनिवर्सिटीज़ के नताइज भी आ चुके हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से कश्मीरी तलबा को एंट्रेंस टेस्ट के नताइज की इत्तला ही नहीं मिल पा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए रूहुल्ला नामी तालिब इल्म ने कहा कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। PhD के लिए उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया था। कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद रहने से वो अपना नतीजा देखने से कासिर रहे। रूहुल्ला का कहना है कि कल इन्हें लैंडलाइन फ़ोन से एक दोस्त के ज़रिए से पता चला कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में इनका PhD का एंट्रेंस टेस्ट पास हो गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कल कोर्स का खाका जमा करने की तारीख मुकर्रर रखी है। इस तालिब इल्म का कहना है कि एक ही दिन में दिल्ली पहुंचना इनके लिए नामुमकिन है। उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से अपील की कि PhD का खाका जमा करने की तारीख में तौसी की जाए। इसी तरह कई दीगर तलबा को भी मुश्किलात का सामना है। PhD का एंट्रेंस दिया था मैंने, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। लेकिन अभी कल रात को मुझे एक दोस्त ने लैंडलाइन से फ़ोन किया कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन सिनॉप्सिस जो है वो कल ही सबमिट करने हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। ओवरनाइट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि रीजनल सेंटर कम से कम इंटरनेट फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रखें। और इसके अलावा भी जो है अभी 1 सितंबर से UGC नेट के फॉर्म आने वाले आ चुके होंगे और दिसंबर में एग्ज़ाम्स है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि कम से कम वो ऐसे कुछ उनसे राबिता करे ताकि डेट्स एक्सटेंड हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर तरीके से कुछ टाइम तक पता चले ताकि वो भी पहुँच सके उस मकाम तक। मेरे फ्रेंड्स ने उनको एडमिशन कराना था बाहर, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोई पता ही नहीं चल रहा है कौन सा दिन का लास्ट डेट निकला है, कब फार्म निकले हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस बारे में हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कम्युनिकेशन बहाल करे ताकि हम लोगों को और मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बड़ी ही अक़ीदत और एहतराम के साथ यौम आशुरा की तकारीब और जुलूस मुनाकिद किए गए। जामिया बाबुल इल्म मीरगुंड से बड़ा मातमी जुलूस निकाला गया और हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। पेश है बड़गाम से समयूला की ये रिपोर्ट। यौम आशुरा के मौके पर हर करिया, हर बस्ती मातम कना रही और हर तरफ या हुसैन की गूंज सुनाई दी। लबासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा ने करबला के मैदान में साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए दीन हक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। इसी अजीम कुर्बानी की याद में हर साल मातमी जुलूस और मजालिस मुनक्किद की जाती है। यौम आशुरा पर वादी के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस बरामद हुए और मजालिस आज़ा का एहतमाम किया गया। आज़ादारों ने सीना कोबी की, मरसिया व नोहा ख्वानी के जरिए शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। मामूली सा वाक़ा नहीं है या कोई वाक़ा नहीं है जो गुज़रा है और तमाम हो गया या ख़त्म हो गया है, बल्कि करबला एक तहरीक और एक मूवमेंट है। किसके ख़िलाफ़ मूवमेंट है? जुल्म के ख़िलाफ़। ये करबला मूवमेंट है इस्तिहसाल के ख़िलाफ़, जिसकी दागबिल और उसकी बुनियाद ख़ुद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने डाली है और हमें ये हुक्म दिया है कि इस मूवमेंट को अब ज़िंदा रखें। यजीद इस्लाम के पैगाम को मस्क करना चाहता था, तो ऐसे में एक आवाज़ गूंजी और वो आवाज़ हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी। और शुरा के दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, इन कान दीन मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्लनी फ़या सयूफ़ खुज़नी, कि अगर मेरे नाना का दीन अब मेरे खून के बगैर बाकी नहीं रहता तो ए तलवारों आओ और मुझ पर बरसो। हजरत इमाम हुसैन की शहादत इस्लामी तारीख का एक ऐसा अजीम वाक़या है कि सदियों इसकी याद ताज़ा रहेगी और इंसानियत के लिए मशअल राह का काम देगी। हजरत हुसैन की शहादत का सबसे बुनियादी पैगाम ये है कि मुसलमानों को दीन हक से इस दर्जा वाबस्तगी हो कि वो हक के लिए जान कुर्बान करने से भी गुरेज न करें। हुसैन और यजीद ये दो पहलू हैं आशुरा के। हुसैन जो नुमाद है मज़लूमियत का और हक का, और उस तरफ यजीद जो नुमाद है जुल्म का और बातिलियत का। और हुसैनी जुलूस जब भी बरामद होते हैं, सड़क पर निकलते हैं, ये हर उस वक़्त की यजीद के लिए ललकार होती है
मुस्तज़िफ़ीन और मज़लूमीन के लिए हिमायत का ऐलान होता है। यही एक बुनियादी मकसद है जो हर साल मुसलमान सड़कों पर निकलते हैं और उस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। वाक़या करबला के ज़रिए अमली ज़िंदगी में बहुत कुछ रहनुमाई हासिल की जा सकती है और ज़रूरत इस बात की है कि इसके हकीकी पैगाम को आम किया जाए। तारीख दे रही है आवाज़ दम बदम, दश्ते सिबात अज़्म है दश्ते बलाओ गम, सब्रे मसीह और जुर्रते सुकरात की कसम, इस राह में फ़कत है एक इंसान का कदम, जिसकी रगू में आतशे बदरो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें ग्रामी हुसैन है। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम। जम्मू के शहीदी चौक पर यौम आशुरा का जुलूस निकाला गया। पीर मिठा से जुलूस बरामद हुआ और करबला कम्प्लेक्स पर इख्तिताम पजीर हो गया। बड़ी तादाद में अज़ादारों ने इस जुलूस में शिरकत की। अज़ादार सीना कोबी और नौखानी कर रहे थे। इस मौके पर मैदान करबला में अजीम कुर्बानी देने वाले हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दुनिया का अजीम तरीन इंसान था, जो ना सिर्फ मुसलमानों का ही बल्कि उसने पूरी इंसानियत के लिए, पूरे समाज के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिलत अपने इस अलम को, अपने इस पैगाम को हमेशा के लिए कायम व दायम रखा और उसी की याद ताज़ा करने के लिए हम यहाँ पे हैं। हम बहुत मशकूर हैं जम्मू के उन आवाम का बिला लिहाज व मज़हब मिलत जो हमारे साथ हमारे शाना बशाना काम करते हैं। शहादत देख के अपनी जिस प्रकार से बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हम सब आज के दिन इसी आइडियोलॉजी को आगे लेकर चलेंगे और जो प्रेरणा लेकर ये लोग इन्होंने इस धरती से पाप ख़त्म करने की कोशिश की थी, हम सब भी मिलकर इस जम्मू कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो और हम भाईचारे के साथ आगे सौहार्दपूर्ण रहकर अपने प्रदेश को आगे लेके जा। सदियों से ये रिवायत चल रही है और ये आपसी एक रवादारी का, आपसी प्यार का, मोहब्बत का एक ऐसा पैगाम है जो मैं समझता हूँ रियासत नहीं, रियासत के बाहर भी जहाँ जहाँ भी फ़िरका परस्ती है कि कोशिशें लोग करते हैं समाज को तोड़ने की, उनके लिए क्लियर मैसेज है कि कुछ सीखना है तो जम्मू की इस पावन धरती से सीखो, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है और आपसी रवादारी इस तरह मनाई जाती है। वहीं यौम आशुरा के मौके पर इमाम बारगाह मलाबूछन से जुलजना बरामद हुआ, जो मागाम बाजार से होते हुए मागाम के मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हो गया। आशुरा के इस जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। उधर बाबापुरा मागाम, गोम अहमदपुरा, नूलरी, मालवा, हागरपुरा, तांतरेपुरा, तुंजे हेरन के अलावा और कई इलाकों से जुलूस अज़ा बरामद हुए। ये जुलूस अहमदपुरा के तारीख़ इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुए। इनमें हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों ने मरसिया खानी और नौहा खानी करके शहदाए करबला की याद ताज़ा की। इमाम बारगाह अहमदपुरा में उलमा ने शहादत करबला के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। उलमा ने लोगों को इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने की तलक़ीन की। पटन के मुख्तलिफ इलाकों से भी आशुरा के जुलूस बरामद हुए। एक आवाज़, एक हुसैनियत की आवाज़ आज पूरी जालिम के खिलाफ जितने भी जुल्म हो रहे हैं, एक बड़ी मिसाल जो हम देख रहे हैं आज आलम इस्लाम, ये ईरान का जो इनकलाब था वो भी आशुरा इसी की वजह से आया। इमाम खुमैनी ने खुद फरमाया था हमारा ये इनकलाब आशुरा की वजह से आया, इसी मुहर्रम की वजह से आया। तो इसका ये बड़ा पैगाम यही है, बड़ा फ़लसफ़ा यही है कि हम उठ खड़े हों जालिम के खिलाफ। यही हुसैनियत है और यही करबला है। युस मकसद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्मस खिलाफ हकस तो बातिलस फर्क, अगर हक आसे तथ साथ दिन, अगर जुल्म आसे अयुस जुल्म दबाउन, यह मकसद हज़रत इमाम हुसैन, यह मकसद आज़ादारी, यह मकसद वनकस सान निमन आज़ादारन जोग दर जुलूसन में शिरकत कर। इस बीच इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की कुर्बानी के पैगाम को आम करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सबीलें भी लगाई गई थी। मागाम, पटन और इसके आसपास के इलाकों में छोटे बच्चे, जवान और बुजुर्गों ने राहगीरों को पानी और शरबत पिलाया। खाने की दीगर अशिया भी तकसीम की गई। अहले तशी के अलावा सुन्नी मुसलमानों ने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कई रज़ाकारों ने कहा कि इस काम के जरिए वो इमाम हुसैन के हक़ व सदाकत के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। सुन्नत बरादरी से था वाबस्त यपर जुलूस सतन भरपूर करान हिमायत, चाय दिवान, त्रेश दिवान सतन इकवट नेरान जुलूस सतन अक सुंद कह हर कंस हक इमाम हुसैन सत नेरन क्या हुसैनियत यह गस रोजन जिंदा। इस्लाम में खिदमत सबसे पहले है,
आज यहाँ पे सभी लगाए हुए हैं कि जो भी यहाँ पे आज़ादार हुसैन आते हैं उनको पानी पिलाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो भी आज़ादार इस राह से निकले उनको हम पानी पिला सके, ताकि एक पैगाम हम दे सके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बका के लिए, इंसानियत की बका के लिए अपनी जान निछावर कर दी। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जिला कुलगाम के शाहू, शज्जन और वागाम इलाकों में भी मुहर्रमुल हराम की तकरीबात मुनाकिद हुई। यहाँ कायम इमाम बाड़ू में हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला को याद किया गया, जबकि उलमा ने हज़रत इमाम हुसैन और इनके अहले खाना व दीगर असहाब की शहादत के वाक़यात बयान किए। उन्होंने कहा कि करबला की याद हमें कुर्बानी, जज्बा ईसार और हकीकत पसंदाना ज़िंदगी की तरगीब देती है। मकामी इलाकों में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कोई भी जुलजना का जुलूस बरामद नहीं हुआ, जबकि एहतिजाजी तौर पर अज़ादारों ने इमाम बाड़ू में ही मरसिया ख्वानी की। अज़ादारों के मुताबिक वादी में नामसाइद हालात और आशूरा के जुलूस पर पाबंदी आयद किए जाने के खिलाफ वो सरापा एहतिजाज हैं। उधर इंतज़ामिया ने अज़ादारों के लिए तमाम तर सहूलियात बहम रखी थी। लोगों ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्ताजियत का इजहार करेंगे। मरसिया खानी या नवा खानी हम अपने इमाम बाड़ू में ही अंजाम देंगे। बाकी हम बाहर प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि हालात तो नामसाइद है। इसलिए तमाम श्रीनगर में या और किसी जगहों पर सुनने में आया है कि जुलजना तो उन्होंने नहीं निकाले हैं। इसलिए हम भी प्रोटेस्ट करते हैं कि हमने भी इस साल जुलजना बरामद निकाला नहीं गया। कि कुल अर्जुन करबला कुल यौमिन आशूरा, हर वो ज़मीन करबला है जहाँ पर जुल्म हो रहा है। हर वो दिन आशूरा है जिस दिन किसी भी जुल्म के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाई जाएगी, उसको आशूरा कहते हैं। चूँकि आशूरा का जुलूस इसलिए आज बंद किया गया है, पूरे कश्मीर में इमाम हुसैन के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बिना पर हमने बतौर एहतजाज बंद किया है। यहाँ 2-3 बार आए भी, वो तमाम इंतजाम का जायजा लिया, और इससे पहले भी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया। वो तमाम महकमा जहाँ को हिदायत दी गई थी, जिसमें पावर है हमारा, ये जो है ये सैनिटेशन के लिहाज से, पावर के लिहाज से, वाटर सप्लाई के लिहाज से, और भी बहुत से इंतजाम हैं, और हमने बहुत से इंतजाम किए थे यहाँ पर। 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर आज जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर अज़ादारों के जुलूस बरामद हुए। इस सिलसिले में सबसे बड़ा जुलूस जिला पुलवामा के गांगवा इलाके से बरामद हुआ। जुलूस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इससे कबल उलमा ने करबला वाक़े पर रोशनी डाली और हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अलम शरीफ जुलूस गांगवा के मुख्तलिफ हिस्सों से होकर इमाम बाड़ा पर इख्तिताम पजीर हुआ है, जो 61 हिजरी में पेश आया, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ के करबला में क़याम किया। तो उन्होंने एक अजीम जुमला फरमाया कि मेरे जैसा हुसैन जो है यजीद जैसे जालिम की क़यामत तक जो है बैत नहीं कर सकता। तो यही दर्स, यही मैसेज ये दिन जो है देता है। ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कैसे हम हक के हक में आवाज़ उठाए और जुल्म के खिलाफ कैसे हम आवाज़ उठाए। करबला हमें यही सिखा रहा है, करबला हमारे लिए यही दरजगाह है कि हम किस तरह वक्त के यजीद के खिलाफ, वक्त के तागूत के खिलाफ आवाज़ उठाए। वहीं यौम आशूरा के मौके पर हजरत बल अनंतनाग में एक दीनी मजलिस का एहतमाम हुआ। तकरीब में लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मोए पाक की ज़ियारत कराई गई। आलिम दीन पीर समीर अहमद सिद्दीकी ने तबरुकात की निशानदही कराई और आशूरा के वाक़यात पर रोशनी डाली। उन्होंने शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। उधर करगिल में यौम आशूरा के मौके पर मातमी जुलूस निकाले गए। कसीर तादाद में अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की और मातम किया। अज़ादारों ने सीना कोबी के अलावा मरसिया और नौहा खानी की और करबला के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। द्रास, सनकू और सूरू समेत करगिल के मुख्तलिफ मकामात पर मातमी जुलूस बरामद हुए। इस मौके पर दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ और करगिल को कश्मीर के साथ रखने की मांग करते हुए नौजवानों ने खामोश एहतजाज भी किया। लेह में भी मातमी जुलूस निकाले गए। मुख्तलिफ मकामात से छोटे छोटे जुलूस लेह गेट पर जमा हुए, जहां से बड़ा जुलूस बरामद किया गया। तारीख़ी इमाम बारगाह में
उलमा व ज़ाकिरीन ने करबला के वाक़यात बयान किए और इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानियों का तज़किरा किया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मौसर इंतज़ाम किए गए थे। कुल्लु यौमिन आशुरा कुल्लु अर्ज़िन करबला का मकसद ये है कि जहाँ पर किसी भी जगह में जुल्म और बर्बरियत हो तो उसके मुखालिफ में खड़े होना यह आज का आशुरा है, और इंसानियत को इंसानियत के खातिर कुर्बान करना यह आज का करबला है। आज हम हर ज़मीन को करबला बना सकते हैं और हर दिन को आशुरा मना सकते हैं, इस हिसाब से कि हम अपने जगह पे जालिम के मुकाबले में क़याम करें, जहाँ जुल्म होता हो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations and concocted charges against my country. The world is aware that this fabricated narrative comes from the epicenter of global terrorism, where ringleaders are sheltered for years. This country conducts cross-border terrorism as a form of alternate diplomacy. National Register for Civil Rights is a statutory, transparent, non-discriminatory legal process mandated and monitored by the Supreme Court of India. Its implementation will comply with Indian laws. As a responsible member of the international community, India firmly believes in a constructive approach to promote and protect human rights. My full statement will be on the HRC internet. I thank you all. Je vous remercie. Je donne la parole aux Bahamas. Merci, Monsieur le Président. The Bahamas thanks the High Commissioner for her oral update presented yesterday and welcomes its timely and comprehensive focus on the important issue of climate change. For the Bahamas, HRC Internet, I thank you all. Je vous remercie. I thank you. तो नाज़रीन, आप UNHCR में इजलास चल रहा था, आप उसकी लाइव तस्वीर देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे। यौम आशुरा की मुनासबत से लेह में खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया गया। गैर सरकारी तंजीम अलमदार हेल्थ सर्विस लेह की जानिब से मुनाकिदा कैंप में कई अफराद ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर एक तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर PK कुंजंग ने शिरकत की और तंजीम के इस इक़दाम को सराहा। मुख्तलिफ सियासी व समाजी और मजहबी तंजीमों ने लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। हम चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग इसमें जुड़े और इसको और भी ज़्यादा कामयाब बनाएं। इसमें हम जब ब्लड डोनेशन की बात होती है तो हम ये नहीं देखते कि ये डोनेट किसको हो रहा है, या ये नहीं देखते कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। हमें ये पता होता है कि बस हमें ये डोनेट करना है, तो हमारे जवान फ़ौरन आके वहाँ पे डोनेट। उधर रामबन जिला के चंद्रकोट इलाके में भी मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। सैयद समर काज़मी ने अपने खिताब में वाक़यात करबला पर रोशनी डाली और पैगंबर इस्लाम और इमाम हुसैन के बताए तरीके पर अमल करने की तलकीन की। इस मौके पर मकामी इंतज़ामिया की जानिब से मुनासिब इंतज़ामात किए गए थे। इस्लाम ये कहता है सबसे पहले इंसान बनो, अगर तुम्हारे पास इंसानियत नहीं है तो तुम मुसलमान नहीं बन सकते हो। इंसानियत पहला दर्जा, उसके बाद मुसलमान का दर्जा है। यानी हमारा जवानों से हम यही कहना चाहते हैं, करबला पढ़ने के बाद उससे दर्स हासिल करें, इस्तेहकाम, मजबूती, क़याम और जालिम के खिलाफ जद्दोजहद करने का जद्दोजहद हमेशा। पूंछ की जामा मस्जिद में यौम आशुरा का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद फारूक समेत दीगर उलमा ने मैदान करबला में पेश आने वाले वाक़यात पर रोशनी डाली। इस मौके पर शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। वहीं राजौरी में मुहर्रम के जुलूस बरामद हुए। इस मौके पर जगह जगह सबीलें लगाई गई थी। राहगीरों और अज़ादारों को पानी और शरबत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने बड़ी तादाद में मुंबई ज़ैनबिया इमाम बारगाह से बरामद होने वाले जुलूस आशुरा में शिरकत की। करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने भी जुलूस यौम आशुरा में शिरकत करते हुए नौहा खानी की और शहादत इमाम हुसैन और अहले बैत को याद किया और मातमी पुरसा पेश किया। भोपाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तलबा ने भी रिवायती अंदाज में मुहर्रम का जुलूस निकालकर शुहदाए करबला को याद किया। भोपाल में ज़ेर तालीम कश्मीर और लद्दाख के तलबा ने वतन से दूर होने के बावजूद रिवायती अंदाज में न सिर्फ मजालिस का इनकाद किया बल्कि यौम आशुरा के मौके पर अपना अलहदा से जुलूस निकालकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इस बीच आज यौम आशुरा के मौके पर दिल्ली में भी कश्मीरी दस्तों ने मातमी जुलूस निकाला। इस जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादार शामिल हुए। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने अज़ादारों से बात की।
اگر دیکھیں ہم ایک لائن میں بولوں کہ جو مظلوم ہے مظلوم اور حق کے ساتھ ہو جاؤ اور جو ظلم ہے اس کے خلاف رہو، حسینیت کا یہ میسج ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے کاشتکاروں سے میوہ جات خریدنے کے فیصلے کا کاشتکاروں نے خیر مقدم کیا ہے۔ اس سلسلے میں نیفیڈ تمام ضروری لوازمات اور انتظامات کر رہا ہے۔ لوگوں نے ظاہر کی تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کیندری سرکار کے دوارا کہ نیفیڈ کے تھرو جو سیب ہے کشمیر کے وہ خریدے جائیں گے ڈائریکٹلی۔ اگر سرکار نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ ہمارے پھل جو کشمیر کے پھل ہیں وہ سرکار ادھر ہی اچھے داموں پہ لے گی تو ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں۔ ایتہاسک فیصلہ ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا اکنامکلی جو کشمیر کو سون کرتا ہے۔ راحت تو یہ اچھی ہے مگر یہ اب امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں وہ رہ جائیں گے۔ اگر کہیں شہر میں سری نگر میں وغیرہ وغیرہ بہت سارے پلین جگہ کے سیب لیے جائے، یہ سب جو بھی غربا لوگ جو رہ رہے ہیں پہاڑوں میں اوپر نیچے، اخروٹ ہیں سیب ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے ہم نے بیچنے ہیں، چاہے جہاں سے بھی بکے جائیں گے وہاں سے بکنے۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے دفعہ 370 کی منسوخی پر پاکستان کی جانب سے واویلا مچانے پر پڑوسی ملک کی شدید نکتہ چینی کی۔ جتیندر سنگھ جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے پاک مقبوضہ کشمیر کو دوبارہ حاصل کرتے ہوئے اسے ملک میں شامل کرنے کو اگلا ایجنڈا قرار دیا۔ Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یا میرا سنگٹھن نہیں کہہ رہا، یہ راجنیتک دل نہیں کہہ رہا. This is a part of a unanimously passed resolution of the Parliament in 1994 by the Congress government headed by Prime Minister Narasimha Rao. اب یہ اور بات ہے کہ کانگریس والے خود ہی نرسمہا راؤ جی کا نام لینے میں تھوڑا پرہیز کرتے ہیں. But this is an accepted position. اور جہاں تک پرکریا کب پرارمبھ ہوئی اس سے زیادہ مہتوپورن ہے کہ یہ منزل مخصوص تک پہنچی. وادی چناب میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران محسوس کیے گئے زلزلوں کے جھٹکوں کے تناظر میں انتظامیہ نے موک ڈرل منعقد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انتظامیہ نے تعلیمی اداروں اور دیگر دفاتر میں موک ڈرل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بلڈنگیں جو ہے ابھی انسیف ہے، لیکن آنے والے وقت میں اگر ایسے جھٹکے آئیں تو وہ بلڈنگیں جو ہے انسیف ہو جائیں گی اور وہ گر بھی سکتی ہیں۔ ایسے کل بھی کچھ حادثہ ہوئے ہیں 1-2 اسکولوں میں، تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کوئی ایڈوائزری جو ہے وہ ان پبلک ڈومین ہے، سارے اسکولز کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ موک ڈرل امیڈیٹلی سارے اسکولز میں کمپلیٹ کریں۔ کل سے جو ہے وہ موک ڈرل اسکول میں شروع ہو گئی، آج چھٹی کا دن ہے، کل واپس کو کرائیں گے کیونکہ پرائرٹی ہماری جو ہے وہ جان مال کا نقصان ہونے سے بچنا ہے۔ تو سارے اسکولس کو بھی چاہیے، اس میں بچوں کو 1-2 فوکس رکھے گئے کہ جہاں جہاں پہ اسکول بینچز اویلیبل ہے امیڈیٹلی بینچز کے نیچے چلے جائیں، یا پھر جہاں جہاں پہ بینچز اویلیبل نہیں ہیں وہاں پہ یا تو کونے میں کھڑے ہو جائیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کولگام کی صدارت میں مختلف بینکوں اور متعلقہ محکموں کی DLRC میٹنگ منعقد ہوئی۔ ریاستی و مرکزی سرکار کی معاونت والی اسکیموں کی عمل آوری کے سلسلے میں بلائی گئی میٹنگ میں مستحق افراد کو متعلقہ محکموں کے ذریعے قرضہ جات فراہم کرنے اور اسکیموں کو بنیادی سطح پر کارگر بنانے پر بات ہوئی۔ بھلیسا کی ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے HSS کلوتھرن میں ادبی و شعری نشست منعقد کی گئی۔ ڈگری کالج کے پرنسپل ڈاکٹر بشارت نے تقریب کی صدارت کی۔ SDM گندور ڈاکٹر پریتم لال تھاپا مہمان اعزازی تھے۔ اس موقع پر ماہر تعلیم غلام حسین ملک کی کتاب یاد ماضی کا رسم اجرا انجام دیا گیا۔ تنظیم کے چیئرمین محمد ایوب زرگر نے کتاب پر اپنا تبصرہ پیش کیا۔ مصنف کو فخر بھلیسا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 27 سالہ سہیل احمد ولد علی محمد گلکار ساکنہ ڈلگیٹ سری نگر 2 ستمبر سے ڈلگیٹ سے لاپتہ ہے۔ ان کے بارے میں اگر کسی شخص کو کوئی بھی اطلاع ہو تو وہ اسکرین پر نظر آ رہے فون نمبر پر اطلاع دے۔ ادھر بیگم خالدہ خان اہلیہ مرحوم خواجہ عبدالرشید خان ساکنہ باغات برزلہ مختصر علالت کے بعد 9 ستمبر کو انتقال کر گئی۔ ان کی فاتح خوانی ہفتے کو ان کے آبائی قبرستان میں انجام دی جائے گی۔ ہماچل پردیش کے منالی سے کرگل کے سب ڈویژن زنسکار تک تعمیر کردہ روڈ کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس سلسلے میں کرگل انتظامیہ کی جانب سے آج زنسکار کے رینگمو چوک پر ایک تقریب منعقد کی گئی۔ سڑک کھلنے پر مقامی افراد نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں فائدہ پہنچے گا۔ لیہ سے زنسکار روڈ پر بھی گزشتہ 10 سال سے تعمیر کی جا رہی ہے، تاہم ابھی تک اس کا کام مکمل نہیں ہوا ہے۔
लेह में लद्दाख मैराथन इख्तिताम पजीर हो गई है। दुनिया भर से 6000 से ज्यादा अफराद ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। रेमो एक्सपेडिशन की जानिब से गुज़िश्ता 7 बरसों से इसका इनाकाद किया जा रहा है। खरदोंगला चैलेंज में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के जवानों ने नुमाया मकाम हासिल किया। 42 किलोमीटर की दौड़ में शबीर हुसैन ने पहला मकाम हासिल किया, जबकि जगमेंट नूरबो ने दूसरा और मंजूर हुसैन ने तीसरा मकाम हासिल किया। ख्वातीन के जुमरे में जगमेंट डोलमा ने फर्स्ट पोजीशन, डोलकर ने दूसरी और नामगियाल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वहीं लेह में ICDS डिपार्टमेंट ने महकमे सेहत के इश्तराक से PMSM अभियान शुरू किया। मरकजी हुकूमत की इस मुहिम के तहत हर महीने की 9 तारीख को हामिला खवातीन के लिए मुफ्त तशखीस कैंप मुनाकिद किया जाता है। SNMH अस्पताल में कई हामिला खवातीन का चेकअप किया गया और इन्हें दरकार दवाएं और दीगर सहूलियत